Hello everyone. In the previous video, we discussed about why C is important to us, why students should learn C language and history of C language and machine language and assembly language and their disadvantages. So from today, we will start with the generations. So this is the drawback of assembly language, machine language and assembly language. So the drawback of assembly language is it's not a portable language, it is a processor dependent language. It means it if we make a program on HP laptop, it does not work on Dell laptop. So it is a portable language and it is dependent on hardware. So the two languages, these two languages means assembly language and machine language, these two are the low level language. So this is our lecture 2 and in this lecture we will discuss about generation. In third generation, languages are categorized into two categories. Here we mentioned only two categories, but the categories are three: low level languages, mid level languages, and high level languages. First, we understand about low level language and then high level. After high level, we can only understand about mid level language. So, first we start with low level language. What is low level language? Low level language are those language which having dependency on the hardware. Means dependency on the hardware. In the previous video I tell you about the machine language and assembly language. These two languages is dependence on the hardware. It means these both are low level language because the low level language means those languages which only depend on hardware. So, depend on hardware means, again I will tell you, depend on hardware means if I make a program in a HP laptop and my friend has a Dell laptop, I want to show my program to the to my friend. When I show her, that program does not appear on Dell screen because the hardware are not same, they're different because they have different hardwares. So this is the disadvantage of machine language and assembly language. That's why these languages are known as low level languages. So low level languages are those languages which having dependency on the hardware. So in these main disadvantages, these are dependency on the hardware. These languages have dependency on the hardware, and the second disadvantage is these languages are closer to the machine. ये मशीन कितने क्लोजर होती हैं कि वी आर डिफिकल्ट टू यूज. So hope you all understand low level languages. Move forward to the high level languages. High level languages are those languages which are closer to the programmer and easier to use. Programmer means us. We make programmers program, so we are programmer. So high level language वो लेवल लैंग्वेज होती हैं जो क्लोज होती हैं प्रोग्रामर के एंड वी कैन easily use them. In the early stage of high level language, we have some target oriented languages. What do you mean by target oriented languages? Target oriented languages means goal oriented languages, such that my target is to come here and tell you about C language and complete my full course of C language and share with all of you. So, target, what's my target here? My target is to come here and tell you about C language. And what's your target? Your target is come here and see my videos. So, target oriented languages mean goal oriented languages. Means they have a goal oriented languages. These high level languages have some target oriented languages. मतलब इन्हें अपने टारगेट की काम करना. So these COBOL, BASIC, Fortran, and Algol. These are the examples of high-level languages. COBOL means Common Business Oriented Languages. BASIC, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Fortran, Formula Translation, and Algol, Algorithm Language. सी लैंग्वेज आने से पहले ये चार लैंग्वेजेस थी: कोबोल, बेसिक, फोर्टान और एल्गोल. जब किसी इंसान को ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी चारों, जब किसी इंसान को कुछ प्रोग्रामिंग करनी थी बिजनेस से रिलेटेड तो वो कोबोल से करता था. अब किसी को करनी थी फॉर्मूला बनाना था किसी प्रोग्रामिंग में तो वो क्या यूज करे, वो यूज करेगा फोर्टन लैंग्वेज.
और एल्गोरिथम बनानी है तो ये एल्गोल यूज करेगा, और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड करने हैं तो बेसिक यूज करेगा। तो उसको ये चारों लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी? क्यों? क्योंकि अगर उसे बिजनेस की प्रोग्रामिंग करनी है तो वो कोबल यूज करेगा, एल्गोल की करनी है तो एल्गोरिथम यूज करेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। पर कोबोल, बेसिक, फोर्टान और एल्गोल, ये चारों एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और कोबोल होता है मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्टान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एंड एल्गोल मीन्स एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो ये चार लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और ये अलग, जैसे कि किसी को जिसका काम करना है तो वो वही लैंग्वेज पिकअप करेगा और उसी पर अपना काम करेगा। पर सी में क्या है? सी में आप चारों का काम कर सकते हैं। आप ये भी फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बिजनेस वाला भी कर सकते हैं और एल्गोरिथम वाला भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का ड्रॉबैक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का पहला ड्रॉबैक ये है, दिस ऑल लैंग्वेजेस आर द टारगेट बेस्ड लैंग्वेज। ये टारगेट बेस्ड लैंग्वेज है। टारगेट बेस्ड लैंग्वेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया ही, जैसे कि यहाँ कोबल वाला है, ये बिजनेस का ही कर पाएगा। अभी हम इस पर फॉर्मूला ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये कोबल लैंग्वेज पे नहीं होगा। अभी हम एल्गोल वाला करना है, एल्गोरिथम पे मैं चाहती हूँ कि बिजनेस वाला हो जाए, नहीं होगा। तो ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इसका, कि these all languages are the target based languages। ये चारों लैंग्वेजेस टारगेट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कोबोल, कोबोल इज यूज्ड फॉर बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोजेक्ट। कोबोल जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। फोर्टान जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होगा। तो इसमें ये तो दिक्कत है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है। इसमें सो एवरीवन, वी आर हियर, सॉरी। सो हाई लेवल लैंग्वेज की क्या डिसएडवांटेज थे कि एक तो टारगेट बेस्ड लैंग्वेज थी, कि ये अपने टारगेट पर ही काम करेगी। जैसे कि कोबोल बिजनेस के लिए यूज होती है तो ये बिजनेस वाला ही करेगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये नहीं कर पाएगी। और जो फोर्टन है वो बिजनेस वाला नहीं कर पाएगी, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही करेगी। सो ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज था हाई लेवल लैंग्वेज का। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आई थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस, दैट इज सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज है मिड लेवल लैंग्वेज। अब कहते हैं कि कोई बोलता है सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, कोई कहता है तो लो लेवल लैंग्वेज है। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मिड लेवल लैंग्वेज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो सी लैंग्वेज है वो मिड लेवल लैंग्वेज ही है। बिकॉज इन दैट we can do the low level programming as well as we can do the high level programming also, because in the C language हम ये जो है आपका बिजनेस वाला, ये कोबोल या COBOL, Basic, Fortran, Algo, we can do both four things in C language. And that low level language, we can also make programs of low level language in the C language also. Because in that we can do the low level programming as well as we can do the high level programming also. It has features of low level along with the high level programming. That C language. C language is a mid-level language program, mid-level language, and in that we can make the programming of high-level programming and low-level programming also. Even it has the features of low-level along with the high-level programming. अभी हमने लो लेवल के फीचर्स ही नहीं पढ़े, तभी हम लो लेवल के फीचर्स पढ़ेंगे और हाई लेवल के, तभी उन दोनों के जो फीचर्स हैं वो दोनों के फीचर्स सी में हो सकते हैं। So translator. Translator is a software which is used to convert high level code into machine code. अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज जो थी उसमें असेंबलर ट्रांसलेटर यूज हुआ था, जिसने कि ABCD को 10 में कन्वर्ट किया था, मीन्स असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। सो जो ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड को मशीन कोड में। उसमें क्या था, इन द थर्ड जनरेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग टू ट्रांसलेटर्स। थर्ड जनरेशन में दो ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर इट चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर में ये होता है कि ये हर एक कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, बट इन द कंपाइलर इट चेक द कंप्लीट कोड विद इन अ सिंगल स्ट्रोक एंड कंपेरेटिवली फास्टर देन द इंटरप्रेटर। अभी आप कुछ चीज पाइथन में बनाते हैं,
पाइथन में क्या होता है, पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि जिसपे इंटरप्रेटर है, और जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर है उसमें। तो उसमें क्या है, कंपाइलर में अभी आप पूरा प्रोग्राम आपने बना लिया, आपने उसे कंपाइल किया, तो वो आपकी जैसे कि आपकी 4 लाइन में एरर है, तो वो आपको दिखा देगा एरर्स 4 हैं आपके, और ये एरर है। बट इन द पाइथन, बिकॉज पाइथन वर्क्स ऑन इंटरप्रेटर, तो उसमें क्या होगा कि आपकी 4 लाइन में गलतियां हैं, तो आपको पहले आपको वो एरर दिखाएगा 1। जैसे ही आप पहली वाली का एरर सही कर लोगे तो आपको दिखाएगा फिर एरर 1, उसका सही कर लोगे तो फिर दिखाएगा फिर एरर 1, क्योंकि 4 एरर है ना, तो 4 बार दिखाएगा वो। सो इन द इंटरप्रेटर में क्या होती है, इंटरप्रेटर में वो जो चेक करता है लाइन को, वो कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन चेक करता है। मतलब वो पहली लाइन चेक करेगा क्या इसमें कोई गलती है, नहीं है, चलो मूव टू द सेकंड लाइन। व्हेन सेकंड लाइन में कोई गलती होगी तो तुरंत शो कर देगा कि सेकंड लाइन में गलती है। जब तो अब आप सेकंड की सही कर लोगे तो फिर वो तीसरी चेक करेगा, तीसरी में तो कोई गलती नहीं, तब जाके आपको तीसरी बताएगा। पर कंपाइलर में वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक कर लेगा कि गलतियां 4 लाइन में है, तो वो चारों लाइन बता देगा आपको। ओके। सो फोर्थ जनरेशन, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। क्या आप लोगों को पता है जो आपका एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपको कौन सी जनरेशन का है? हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, कुछ को ना पता है। तो जो लैपटॉप और कंप्यूटर है, ये सब आपका 5th जनरेशन का है। ठीक है। तो जो आप इस समय लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो होता था वो होता था बहुत ही बड़ा बड़ा बड़ा, जिसे क्रेन से उठाए लेके जाता था, इतना भारी होता था। फिर उसके बाद ऐसा आया कि इसे इंसान उठाने लग गया। पर अब जो इस समय कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है इस समय जो चल रहा है। ओके। देन मूव टू द 4th जनरेशन, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। These language always discuss about what, क्या, therefore the codes are smaller compared to the procedural language. In non-procedural language, they are used for the database management. Example SQL. Hope you all know in the starting, in the lecture 1, in the starting, I tell you about, at the first page only, I tell you about the SQL database is made in C language. So SQL is structured query language. SQL full form is structured query language. So ये एक डेटाबेस है जो कि सी में बनाया हुआ है। सो जो 4th जनरेशन है वो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, मीन्स ये वो लैंग्वेज होती है जो डिस्कस अबाउट व्हाट, देयरफॉर द कोड्स आर स्मॉलर। इसके जो कोड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है उससे इसके कोड्स कंपेयर करे जाएं तो वो बहुत छोटे होते हैं, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज के लिए, यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज के लिए ये आती है। एग्जाम्पल एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो व्हाट इज सी? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द सी इज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी में आप सिस्टम एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। आपको कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर में मीन्स software you can make on laptop, you can make them also, or you can make application software. Application software means Android softwares. Now come to system software are those software that direct interacts to the hardware device. Means system softwares are in laptops और computers. ये इनका डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है हार्डवेयर डिवाइसेस से। एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर्स। So the C language is developed for creating system applications and application software also. No, it means in C we can do the low level programming as well as the high level programming. That's why it is known as mid level language. इसको mid level language हम तभी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम high level की programming भी कर सकते हैं और low level की programming भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो C है इसमें आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और लो लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लो लेवल की प्रोग्रामिंग क्या? लो लेवल की प्रोग्रामिंग मीन्स machine language and assembly language. These are the examples of low level programming, and examples of high level programming are COBOL, ALGOL, algorithm, जो मैंने एल्गोल मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप जो ये सी है ये एक मिड लेवल लैंग्वेज है, इसमें आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग आप दोनों कर सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप कभी भी कंप्यूटर में
आप यहाँ लैपटॉप होगा आप सबके पास, कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं तो आपने नोट किया है कि जब भी डाउनलोड आप कुछ कुछ भी करते हैं तो उसमें डाउनलोड होता है .exe में। .exe में डाउनलोड होता ही नहीं होता। तो हम जब भी कुछ जो सिस्टम में कोई भी चीज़ डाउनलोड होती है वो हर बार .exe में डाउनलोड होती है। दिस फाइल इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये फाइल जो होती है एक सॉफ्टवेयर होती है। आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप, तो लिखा आता है whatsapp.exe। इट मीन्स दिस फाइल इज अ सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये। और एप्लीकेशन कोई भी आप फ़ोन में डाउनलोड करते हो तो वो आपकी ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाती है फ़ोन में। Now move to the C programming is considered as the base for the other programming language. That is why it is known as mother language. मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई इंसान साइकिल चलाना जानता है तभी वो स्कूटर चलाना सीख सकता है, जब वो साइकिल जानता है तो हियर ऑल्सो अगर आप सी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप बाकी जावा पाइथन ओ ये ओरेकल या सारी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बिकॉज ये जो सारी प्रोग्रामिंग है इन सब ने सी प्रोग्रामिंग की नकल की है और नकल जैसा ही बनाया है। तो जब आप सी सीख लेंगे तो सी क्या है, सी है मदर लैंग्वेज। दैट इज वाई सी को हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये बेस है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तभी हम इसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। सी को और हम क्या क्या बोलते हैं, सी को मदर लैंग्वेज बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और ये प्रोसीजर ओरिएंटेड फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सी का फर्स्ट प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम लगाते हैं वॉइड मेन, ब्रैकेट लगाएंगे, हम लगाएंगे प्रिंटफ, स्कैनफ। ये सब क्या है, ये सब फंक्शंस हैं, हम इनका यूज करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग को हम तभी बोलते हैं हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेयर एज जावा एंड पाइथन दीज बोथ आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स when we do programming in Java and Python, we do not use function, we use objects. Sorry. So C is a function oriented programming, or we can say procedure oriented. Then it is also known as structured programming language, and it is a middle level programming language. These all are the names of C language. History of C language. C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories. Bell Laboratory में डेनिस रिची ने ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। इसका अब नाम AT&T है। AT&T means here AT&T means American Telephone and Telegraph full form, which is located in US currently। और ये डेनिस रिची ने बनाई थी बेल लेबोरेटरीज में 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली सी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब स्टार्टिंग इनिशियली में मतलब पहले सी प्रोग्रामिंग जो थी, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम अब तो है विंडोज़, iOS फ़ोन में, और अपने लैपटॉप वगैरह में विंडोज़ है और लिनक्स है। तो उस समय जो था उस समय था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस पर सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी स्टार्टिंग में। ये है डेनिस रिची, ये 1941 में पैदा हुए थे और 2011 में चले गए। डेनिस रिची इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। इनको हम फाउंडर भी बोलते हैं सी लैंग्वेज का। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर दैट आर गिवन बिलो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सिंपल, ये बहुत एक सिंपल लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है। और मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल मीन्स, ये आप लोग खुद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूं कि अगर मैंने HP के लैपटॉप पे प्रोग्राम बनाया और ये मैं अपनी फ्रेंड को डेल के लैपटॉप पे भेजूं तो ये उसके में चलेगा। इट मीन्स ये मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। मीन्स ये किसी भी लैपटॉप में चल सकता है, मैं किसी को भी सेंड कर दूं अपना प्रोग्राम तो वो सब चला चला के देख सकते हैं और बता देंगे हाँ आउटपुट ये आया। इट मीन्स ये मशीन इंडिपेंडेंट है, सबके में चल रहा है। और जो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं थी वो कौन कौन सी थी, एक तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दीज आर नॉट पोर्टेबल लैंग्वेजेस, but C is a machine independent or portable language. It's a mid-level language and structured programming language. Structured programming मतलब structure मतलब इसका structured
जैसा स्ट्रक्चर करा हुआ है इसका, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका स्ट्रक्चर करा हुआ है। अगली वीडियो में हम बताएंगे, आपको पहला प्रोग्राम बना के दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज अ रिच लाइब्रेरी, memory management, fast speed, pointers, recursion and extensible. Rich library means, इस rich library का मतलब होता है कि इसकी जो लाइब्रेरी है, सपोज मेरे पास 4 GB का ये है रैम लैपटॉप में, और मैंने प्रोग्रामिंग करी, सी प्रोग्रामिंग, और उसमें 3 GB चली गई। अब बचा कुछ 1 GB है, उसमें नहीं हो पा रही, तो वो क्या होगा, वो जो 3 GB होंगी वो फ्री हो जाएंगी। फ्री मतलब जो उसके प्रोग्राम होंगे वो रैम से चले जाएंगे सारे, जो मैंने सेव कर रखे होंगे अब तक के, जो मैंने प्रोग्राम बनाए सी में, वो 3 GB उन्होंने घेर ली। अब बची 1 GB। अब जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ वो 1 GB में नहीं बन पा रहा, तब मैं क्या करूँगी, वो ऑटोमेटिकली सी में क्या होगा कि वो 3 जो GB मेरी भर गई हैं वो फ्री हो जाएंगी खुद ब खुद। मतलब जो उसकी मेमोरी है उसमें से जो मैंने प्रोग्राम सेव होते गए हैं वो सारे हट जाएंगे वहां से। हटके ये नहीं कि बिल्कुल कंप्यूटर से उड़ जाएंगे, वो अलग जगह सेव हो जाएंगे, पर पूरे 4 GB फ्री हो जाएंगी अगली प्रोग्राम को यूज करने के लिए। तो इसकी लाइब्रेरी है रिच लाइब्रेरी। मेमोरी मैनेजमेंट बढ़िया है, इसकी स्पीड फास्ट है। पॉइंटर्स यूज करेंगे अभी हम इसमें, आपको आगे बताया जाएगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। रिकर्जन मीन्स रिपीटिंग, रिपीटिंग है, और एक्सटेंसिबल है। सी, सो हियर इज द सी लैंग्वेज। It is portable, it is mid-level, it is structured, it has rich library, it is extensible, it is a recursion, it uses pointers, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। It's a faster, it has memory management, and it's a very simple language. Number one, simple. C is a simple language in the sense that it provides a structured approach to break the problem into parts, rich set of library function, data types, etc. It means जो C प्रोग्रामिंग है ये प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कि C प्रोग्रामिंग इज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब ये अलग अलग भागों में बांट देगी प्रॉब्लम्स को, सो हम इजीली हम प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे इजीली, और इजीली समझ भी पाएंगे जब ये अलग अलग। इट टू ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब होता है टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो सी इज अ simple language, and it's a, in that sense it provides a structured approach to break the problem into parts. It has rich sets of library function, I tell you, and data types, etc. Data types are अभी बता देती हूँ मैं आपको, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स होंगे इंटीजर, करेक्टर, फंक्शन, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, ये सारे क्या होंगे डेटा टाइप्स। तो हम मतलब जो हमारा जो इसका सी का जो स्ट्रक्चर होगा वो मतलब इतनी पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कि हम इजीली समझ पाएंगे और इजीली हम लिख भी पाएंगे। Next, machine independent or portable. Unlike assembly language, C programming source code can be compiled in many machines with little bit or no change. Note, compiled code of C language is OS dependent, whereas source code of C language is OS independent. जो अभी मैंने आपको बताया मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, जो असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है, ये एक मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे किसी लैपटॉप में बनाएं और दूसरे लैपटॉप में शो करें तो ये नहीं चलेगा। पर जो सी प्रोग्रामिंग है ये किसी भी मशीन में चल जाएगा, किसी भी मशीन में चल जाएगा अगर मैं अपना प्रोग्राम दे दूं, और वो भी बहुत ही विद अ लिटिल बिट, और कुछ चेंज होगा ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि मेरे प्रोग्राम में कुछ चेंज हो जाएगा दूसरी मशीन में चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं होगा और ये दूसरी मशीन में भी चल जाएगा। सो इट्स अ मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। नोट, कंपाइल्ड कोड ऑफ सी लैंग्वेज, जो कंपाइल्ड कोड होता है सी लैंग्वेज का, इज ओएस डिपेंडेंट। मतलब जो हमारा ये है एचपी के लैपटॉप में चल रहा है तो ओएस डिपेंडेंट है। वेयर एज जो सोर्स कोड होता है सी लैंग्वेज का वो ओएस इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे के लैपटॉप में नहीं चलेगा। जो कंपाइल्ड कोड होता है सी लैंग्वेज का, जो हमने कंपाइल किया हुआ जो कोड है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब उसके में भी वही कंपाइल होगा जो मेरे में कंपाइल हो रहा है। पर जो सोर्स कोड है
सी लैंग्वेज का वो ओएस इंडिपेंडेंट है। Mid-level programming language, C is also used to draw low-level programming. It is used to develop system applications such as kernel, driver, etc. It also supports the feature of high-level language. That is why it is known as mid-level language. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, सी लेवल को मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन। इसमें हम कोई सा भी सिस्टम में एप्लीकेशन सी लैंग्वेज की मदद से हम सिस्टम में एप्लीकेशन बना सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के भी ये फीचर सपोर्ट करता है और ये लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर सपोर्ट करता है। दैट इज वाई इसीलिए हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन दैट सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। मैंने आपको बताया कि हम इसको फंक्शंस के जैसे कि वॉइड मेन मैंने बताया पहली हम लाइन में लिखेंगे वॉइड मेन, फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ अगली अगली लाइन में, तो हम इसे ब्रेक करते जा रहे हैं ना, प्रोग्राम को अलग अलग लाइन में लिखते जा रहे हैं, तो हमें भी लिखने में आसानी है और जो दूसरा इंसान है वो इजीली समझ भी लेगा। तभी हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इन दैट सेंस वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स so that we can easily understand and modify. Rich library, I tell you about rich library. C provides a lot of inbuilt functions. इसके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं दैट मेक्स द डेवलपमेंट फास्ट। इसका इनबिल्ट फंक्शन ही तो था वो कि मैंने 4 GB की मेरी रैम है और 3 GB की मेरी खर्च हो गई, अब मुझे और ज़रूरत है प्रोग्राम को, तो वो इनबिल्ट इसका फंक्शन है कि खुद ब खुद 3 GB की फ्री कर देगा और मेरे को 4 GB की फिर से मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये सी प्रोग्रामिंग का इनबिल्ट फंक्शन हुआ, तभी ऐसा हो रहा है। Now, memory management. It supports the feature of dynamic memory allocation. In C language, we can free the allocated memory at any time by calling the free function. Means it supports the feature of dynamic memory allocation. ये support करता है feature को dynamic memory allocation को। In C language, we can free the allocated memory. अब ये क्या है, free bracket, ये एक function है। इसकी मदद से क्या होगा, हम इसकी मदद से ये जो मेमोरी है allocated, वो in C language we can free the allocated memory at any time, किसी भी समय, by calling, केवल हमें ये free function को free को कॉल करना है, free and the brackets, इस function को लिखते ही सारी जो मेमोरी है वो at any time मतलब किसी भी समय वो फ्री हो जाएगी। इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट करता है फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और सी लैंग्वेज में वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। स्पीड, the complementary and execution time of C language. The complementary now comes to speed. The complementation, the complementation and execution time of C language. So, the speed of C language. हम कोई सा भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी कंपाइल हो जाता है। द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम और सी लैंग्वेज इज वेरी फास्ट। हम कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइल पे क्लिक करा तो तुरंत कंपाइल होकर बता देगा कि आपके इतने एरर्स हैं या फिर आपका कंपाइल हो गया प्रोग्राम, तो ये रहा आपका आउटपुट। तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। तो द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट। When it comes to performance, speed of execution, nothing beats C। और ये भी बात सच है कि अगर हम परफॉर्मेंस की बात पर आए तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है सी की। नाउ pointers. C provides the feature of pointers. We can directly interact with the memory by using the pointers. We can use pointers for memory, structures, functions and array, etc. अभी हम पॉइंटर्स आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स में क्या है, पॉइंटर्स में ये है कि पॉइंटर्स का मतलब अभी के लिए आप ये जान लें, पॉइंटर्स का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट करना हुआ।
अभी हम आगे पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स भी होते हैं। सी ऑल्सो प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स मीन्स वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर। मतलब पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को पॉइंट करना। तो किसी चीज को पॉइंट करने से हम मेमोरी के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे, और ये सी हमें प्रोवाइड करता है फीचर्स ऑफ पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एरे। वी कैन हम पॉइंट करने के लिए हम मेमोरी को भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी कर सकते हैं, फंक्शन को भी कर सकते हैं और एरो को भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो सी हमें प्रोवाइड करता है फीचर्स ऑफ पॉइंटर्स so that we can directly interact with the memory by using the pointers. Now comes to recursion. Recursion means we can call the function within the function itself. मतलब function के अंदर ही उसे कॉल करना। It provides code reusability for every function. मतलब C में हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस रिकर्जन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना या दोबारा करना। रिकर्जन का मतलब यही तो होता है कि या तो रिपीट करना या दोबारा करना। तो सी में हमें वो फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि हम फंक्शन के अंदर, इन फंक्शन इटसेल्फ वी कैन कॉल द फंक्शन। In C, we can call the function within the function itself. So it provides code reusability for every function. Now comes to extensible. C language is extensible because it can easily adopt new features. C language इसे extensible हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये easily नए features को तुरंत adopt कर लेती है, तुरंत catch करती है। C language is extensible because it can easily adopt new features. Now comes to phase of C language development. ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से। मीन्स अगले लेक्चर आएगा वो होगा, अगले लेक्चर में हम सी पर एक नया प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हम सी पर बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। सो फेजेस ऑफ सी, यह मैं अभी के लिए आपको ये वाला चलिए बता देती हूँ। जो फेजेस हैं सी प्रोग्राम डेवलपमेंट के, हम टू डेवलप अ सी प्रोग्राम वी नीड 3 थिंग्स। सी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 3 चीज़ें क्या है। पहला तो टेक्स्ट एडिटर, मतलब कि पहले तो टाइप करो आप, फिर कंपाइल करो, और फिर रन टाइम एनवायरनमेंट। टास्क फर्स्ट इज राइट द सी प्रोग्राम, फर्स्ट राइट द सी प्रोग्राम, देन कंपाइल द प्रोग्राम एंड देन रन द प्रोग्राम। राइट द सी प्रोग्राम मीन्स टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर मीन्स लिखिए आप प्रोग्राम को, लिखिए, कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल करिए प्रोग्राम को, रन द प्रोग्राम, रन टाइम इन्वायरमेंट, आप उस प्रोग्राम को रन कराइए। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द writing our first program in C. So this lecture hour ends. Now I'm going to end this lecture. So hope you all understand. If you have any doubt, you can tell me in the comment section. And please subscribe my channel and share my video with all your friends. So be with me and start learning C. I will provide you the full course of C language in free. So now I'm going to end this video. Bye bye. Thank you for watching.